working in the villages. We already work in 200 villages, where especially with तो कई हिस्से में बटा। हाँ जी। परंतु जो भारत जो इमर्जिंग नेशन स्टेट है, क्योंकि नेशन स्टेट जो है कैपिटलिस्ट फिनोमेना है, और नेशन स्टेट जो बन रहा है और भी जो सिस्टम है उस डिप्लोमेटिक रिलेशंस में इन्वॉल्व करते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन में आपने कुछ इन्वॉल्व भी नहीं किया, क्योंकि भारत मतलब मोदी जी से भी पहले जो कांग्रेस, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हम कहते हैं कि ये डाइवर्स वर्ल्ड है। ठीक है, कनाडा का अपना समझदारी है, हमारी अपनी समझदारी है। हम इसी तरह हम लोग कैनेडियन लोगों को कह रहे हैं कि आप भी अपना बदलाव लाइए। ये तरीका नहीं है कि हाउ टू हैंडल द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है। तो आप देखिए क्या करती है, क्योंकि अब क्या है, इलेक्शन होंगे नहीं है, और उनको इलेक्शन के बाद यूएन ने उनको जो है फिलिस्तीन दिया था। तो ये क्या है कि इसी तरह से तरीके से अपनी हार के कारण एक बड़ा कंपोनेंट था ये काम किया। Good afternoon, everyone. Welcome to the episode 6 of Dalimss Podcast. I am Arathya Singh of class 7th. And I am Samriddhi Shrivastava from class 8. Today, we have two major topics to discuss. The topics are Israel-Palestine and India-Canada relation. We have our guest, Mr. Lenin Raghuvanshi, with us. He is an Indian Dalit right activist and a political thinker. He is one of the founding members of this human rights activity. He achieved so many awards like M.A. Thomas National Award and Human Award. Every person has a flavor of success and failure. So it is my humble request. Please share one or two of yours. My name is Lenin Raghuvanshi, and I'm born in Varanasi and completed my bachelor in Ayurveda and modern medicine. And that time I met with Swami Agnivesh, and then I worked with Kailash Satyarthi, who received Nobel Peace Prize. And in 1996 I established our own organization, People Vigilance Committee on Human Rights, which is membership-based organization, 72,000 members. I born in very upper caste family, but we are doing for the reconciliation against caste system and patriarchy to create real strong nation state to Bharat and India. That's a very noble thing, sir. Very noble thing to do. So what is the purpose of the organization Jan Mitra Nyas? Can you throw some light on it for us? Jan Mitra is public charitable trust, and then you know that Jan Mitra means the people friendly. So what happened when we went to the villages? We need to save the village republic, but there is a democratic gap due to the caste system and patriarchy. So through the non-violent way and the real realization of the preamble of constitution on the grassroots level, we are working in the villages. We already work in 200 villages, where especially with the Musar community, and many young people from the Musar community completed their graduation, post-graduations. One Bablu Musar established his own organization, and we helped him to went to Oslo and learn in the youth exchange programs. So that is the whole work of Jan Mitra. There is 72 staff. And we also provide scholarship, we support psychosocial support to torture victims and the victim of the women violence and different violence. सर मैं चालू करना चाहूँगा कुछ क्वेश्चन से। सबसे पहले, अभी जैसा चल रहा है सारी कंट्रीज़ के बीच में डर का माहौल है हर जगह, इतना ज़्यादा, कभी इजराइल पैलेस्टीन अटैक हो जाता है, कभी कनाडा के साथ रिलेशंस ख़राब हो जाते हैं। तो मैं कनाडा से सबसे पहले चालू करना चाहूँगा। क्या लगता है आपको, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, कैसे हो गया यहाँ तक सब चीज़ें? देखिए, जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स है, एक तो सेक्टेरियन थिंकिंग है। कनाडा अपने को एक डाइवर्सिटी का कंट्री है, हमारे अच्छे रिलेशनशिप, लेकिन कनाडा को ये समझने की जरूरत है कि डाइवर्सिटी में ऐसी कोई भी थॉट प्रोसेस जो वायलेंस को क्रिएट करती है, या आप जो है दूसरे के नेशन स्टेट में आप जबरदस्ती इंटरफेरेंस कर रहे हैं जो है, तो ऐसी थॉट प्रोसेस को जो है कैसे रोका जा सके, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। तो कनाडा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, कनाडा इसमें फेल किया है। जो हत्या हुई है वो अनफॉर्चुनेट है, उसको और डीपर जाके देखने की जरूरत है कि ये हत्या रियल में किन लोगों ने की है या भारत को बदनाम करने के लिए किया गया है, और इन सब चीजों पे इमीडिएट बयानबाजी नहीं करना चाहिए। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है अंदर की बातचीत से चलते हैं। जब वो फेल कर जाता है तब वो हम बाहर आते हैं। तो उसमें हमको लगता है कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर्स ने
बहुत पहले ही जो है चीजें की है, क्योंकि उनका अपना कुछ फ्रस्ट्रेशन होगा, उनका वैल्यूज है। हो सकता है मोदी जी का वैल्यूज और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर का ना मिलता हो, मेरा भी नहीं मिलता मोदी जी से, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम मोदी जी की डिग्निटी और उनके जो काम करने के तौर तरीके, जो एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ डिप्लोमेसी है, उसको वायलेट करें। तो सर भारत के टुकड़े करना, इस चीज़ के पर्दा डाल के कि ये तो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ये तो एकदम गलत है, तो आपको क्या लगता है वो क्या करना चाहिए? हमें लगता है कि देखिए पहले भी कोशिश हुई है, ने ब्रिटिश कॉलोनियल स्टेट से क्या किया, भारत के 2 टुकड़ों किए, फिर तीसरा खालिस्तान का पूरा मूवमेंट चला। हमें लगता है कि ये पूरी एक सेक्टेरियन समझदारी है। भारत एक इमर्जिंग नेशन स्टेट है, नया नेशन स्टेट बन रहा है, क्योंकि लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं। भारत एक 2 कल्चर यूनिट है, जो बाली से लेके ईरान के बॉर्डर तक। दूसरी तरफ भारत जो है देश भी था, जो कई हिस्से में बटा। परंतु जो भारत जो इमर्जिंग नेशन स्टेट है, क्योंकि नेशन स्टेट जो है कैपिटलिस्ट फिनोमेना है, और नेशन स्टेट जो बन रहा है उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है। उसमें सबको पता है सबकी सब नेशनलिटीज है, तो कुछ लोग उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं इनसाइड, वो भी ठीक नहीं है। डाइवर्सिटी रहनी चाहिए, अलग अलग कल्चर है, अलग अलग भाषाएं हैं, अलग अलग सब नेशनलिटीज है, उनको इज्जत भी मिलनी चाहिए। परंतु ये जो कनाडा को हमारे मामले में इंटरफेरेंस करने की जरूरत नहीं है, हमारा अपना मामला है, हम संघर्ष कर रहे हैं। So, is Canadian Prime Minister Mr. Justin Trudeau destroying the relation between India and Canada? No, you look, he's an entirely different guy. He's a liberal, and they thought Modi is entirely different. He's a little bit tough guy, right-wing guy. And in that way, actually, the Canadian Prime Ministers, because he lost his position, especially among the voters in Canada, and in this way, actually, he created this drama. So that is the real thing. Before that, he blamed to China, and then now he blamed to our world. So that is the things. So it is a total failure by Canadian Prime Minister. He need to be use diplomacy internally. Diplomacy never going for the just like a social media things and making a buzz into the media and all. It is a deeper issues and need to involve different stakeholders. US is there, UN is there, and then they are going to talk about anything. But he did not use all platforms. And this is the way, because he want to restore his positions among the voters in Canada, because the election is coming. Okay, sir. So, sir, how will it impact on Indian economy? Indian economy is, look, every 6th person in the world is Indian. India is a market with democracy. But few politicians went outside country also talk about that. I don't want to tell his name. The China is a market without democracy, and whole world is facing China. So in this way, India is the only alternative. So they need to work with us. Russia is working on the rupees. So when they are collecting a lot of money, so what they are going to do then? They are going to invest in India. Once upon a time, when the reforms of the Russia is going to happen, we have the main responsibility after the Ukraine and Russia war to help Russia also, and also to Ukraine. So India is in very different position, any political party, because we are big economy, big number, and we are very and China create a lot of problems for you. So my another question is that relation between India and Canada, how trade get impacted? It is not going to create any impact. It is only because Jaishankar, our ex-foreign minister, and now the ex-foreign secretary, and now the foreign minister, he talked with the Canadian government. Nothing going to happen, because they need to work with India. They are going, but we are also careful about our people, especially the Indian people living in Canada, and our government is very careful about that. And we also, I receive an award from the Canada Global Tourism Awards by the Canadian government, and also the Aga Khan Foundation, and I also received the honor from the Senate of Canada. So also I wrote to the Canadian governments, please respect
The relationship also I wrote to the Indian government. They need to talk diplomatically. Already diplomatic relation initiated. Yes, sir. So, sir, what do you think that the India and Canada relations was earlier? That is always intense because you look the defense minister. He is a Sikh guy. They have little sectarian understanding, very different understanding. And India, any nation states are never going to support any sectarian understanding. We need to listen them. We need to give the opportunity to talk with them. We need to give the dignity to them, but they need to also understand us also as a country of the diverse people, not only the Sikhs or Hindus or Muslims and Isais. There is a different languages, different religion, different aspirations also. Yes, sir. So my another question is that, like Khalistan movement, I really want to know what is meaning of Khalistan. Khalistan is the religious movement, fanatic movement, Yes. and it is sectarian. In the same way, just like we are opposing this so-called Islamic terrorism, we are opposing the Hindu fascism. In the same way, we are not going to accept the Khalistan. It is against the spirit of Bharat and India, and also it is against the spirit of Sikhism, Guru Nanak, Guru Gobind Sahib, because it is entirely different. They believe in diversity and inclusion. Yes, So sir. they need to be inclusive and diverse. सर अगर मैं सम अप करूँ ये कनाडा वाला पूरा टॉपिक, कुछ चीज़ें मुझे एकदम समझ में नहीं आती इसमें। एक तरफ कनाडा कहता है कि हम लोग हैं मसीहा पूरे वर्ल्ड के फ्रीडम ऑफ स्पीच के, दूसरी तरफ जो कनिष्का प्लेन बॉम्बिंग थी उसके जो टेररिस्ट थे जिन लोगों ने उसको किया, जो लोग सामने भी है उनको उन्होंने कुछ नहीं किया। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे ये लोग भारत की कड़ी निंदा करते रहते हैं रह के। तो ऐसा मतलब सम अप करूं तो क्या ये सब जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर सब अपनी गद्दी बचाने के लिए कर रहे हैं? देखिए, कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पहले भी चीन पे आरोप लगाया, हो सकता है चीन ने किया हो सकता है भारत भी करता हो, कनाडा और अमेरिका भी यहाँ करता है, ISI भी यहाँ करता है, हर जगह स्पाई तो सब है, लोग स्पाई करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं। ये दुनिया का है यार, ये है हमारी दुनिया, क्या कर सकते हैं। पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज की आप वोट में हार रहे हो तो चाइना को ब्लेम कर रहे हो, आप वोट में हार रहे हो तो भारत के ऊपर ब्लेम कर रहे हो। एक सीरियस इशू है, इसको सीरियसली टेकअप करने की जरूरत है। आपकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में अभी पूरा इन्वेस्टिगेशन ही सही नहीं हुआ। आप UN सिस्टम को इन्वॉल्व करते, आप अमेरिका को इन्वॉल्व करते, हमारा जो पूरा और भी जो सिस्टम है उस डिप्लोमेटिक रिलेशंस को इन्वॉल्व करते। डिप्लोमेटिक रिलेशन में आपने कुछ इन्वॉल्व भी नहीं किया, क्योंकि भारत मतलब मोदी जी से भी पहले जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, आजकल कांग्रेस में नहीं है, उन्होंने भी कनाडा की सरकार को कह रखा है कि हमारे कुछ लोग ऐसे जो हमारे देश के लिए प्रॉब्लमेटिक। एकदम सही। तो ऐसी स्थिति में उसको भी कनाडा को बहुत साल पहले उन्होंने कहा था, और उसको कनाडा को सीरियसली देखने का जरूरत है। अगर कनाडा उसको सीरियसली नहीं देखेगा तो दैट इज अ बिग प्रॉब्लम जो है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हम कहते हैं कि ये डाइवर्स वर्ल्ड है, ठीक है, कनाडा का अपना समझदारी है, हमारी अपनी समझदारी है। हमारे देश के अंदर जो बदलाव होगा हम लाएंगे। इसी तरह हम लोग कैनेडियन लोगों को कह रहे हैं कि आप भी अपना बदलाव लाइए, क्योंकि ये तरीका नहीं है कि हाउ टू हैंडल द डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप जो है। तो अब ये सवाल है कि अब अगर भारत में हमने सुना था, हमने पाकिस्तान में सुना था और देश में सुना था कि जब इलेक्शंस होते हैं जो है, जैसे अभी हमास बहुत दिनों से इलेक्शन नहीं करा रहा था गाजा मतलब फिलिस्तीन में, और फिलिस्तीन में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, तो आप देखिए क्या कर दिया, क्योंकि अब क्या है, इलेक्शन होंगे नहीं है, और उनको इलेक्शन के बाद UN ने उनको जो है फिलिस्तीन दिया था। तो ये क्या है कि इसी तरह से कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से अपनी हार के कारण, एक बड़ा कंपोनेंट था, ये काम किया। और अगर सीरियस बात होती तो उसको सीरियस तरीके से डिप्लोमेटिक चैनल से पहले उठाना चाहिए था। फेलियर होता तो UN सिस्टम को करते, तब ये बातें जाती। और कोई एविडेंस भी तो नहीं दिखाया उन्होंने अभी तक, नहीं, एज ऑफ टुडे तो कुछ नहीं दिखाया। जजमेंट जो उसका डेथ हुआ है, आसपास लोगों से पूछा भी नहीं गया। जो होना चाहिए था इन्वेस्टिगेशन, वो इन्वेस्टिगेशन भी साइंटिफिक नहीं हुआ है। हमारे पास जो सूचनाएं हैं, लोगों ने जो उसको वॉच किया, उतना साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में कनाडा में हमको नहीं लगता कि
ये कनाडा का रिप्रेजेंटेशन है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर है, पॉलिटिकल पार्टी के हैं, उनको इलेक्शन लड़ना है, उनकी अपनी मजबूरियां हैं, तो हमको उसी तरह से मजबूरियों के रूप में देखना चाहिए। जैसे कि मोदी जी पूरा भारत रिप्रेजेंट नहीं करते, हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सब करते हैं, यहाँ और भी पॉलिटिकल पार्टीज है, और भारत का अपना इंस्टीट्यूशंस है। तो हमें लगता है कि हम तो कहे जाते हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, वो कहे जाते हैं फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज, अगर उनके इंस्टीट्यूशन इस तरह से काम कर रहे हैं और उस तरह से अगर वो ये लोग बातचीत कर रहे हैं, तो दैट इज रियल डेंजरस फॉर द डेमोक्रेसी इन द ग्लोब। हाँ जी सर, आपने पूरा टॉपिक बस अच्छी तरह समझा दिया हम लोग को, देयर आर नो डाउट्स लेफ्ट। अब मैं एक नए टॉपिक पे आना चाहूंगा जो अभी करेंटली चल रहा है हम लोग क्या, इजराइल और पैलेस्टीनियन जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, इजराइल पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर मैं आपसे पूछना चाहूंगा क्यों हो रहा है ये? देखिए, ये पुरानी सबसे इम्पोर्टेंट चीज बताएं जो कोई नहीं बोलता है, जब हिटलर ने यहूदियों को मारना शुरू तो पहले तो कुछ सेक्टेरियन कैथोलिक चर्च उसको सपोर्ट कर रहे थे, तो उनको माफी मांगनी चाहिए थी, यहूदियों से नहीं मांगा, उनको ला करके इसराइल में बसाया। जो है इसराइल में यरूशलेम भी उन्हीं का था, क्योंकि इब्राहिम जो पहले प्रॉफिट्स थे उसको इस्लाम भी मानता है, क्रिश्चियनिटी भी मानता है और यहूदी भी मानते हैं। अब ये सवाल है कि यूएन का रेजोल्यूशन है, वो मानते हैं कि 2 नेशंस है, हम भी मानते हैं कि 2 देश है, इसराइल एक देश है और फिलिस्तीन एक देश। और ये बड़ी खूबसूरत बात है कि मिडिल ईस्ट में जिस तरह की सेक्टेरियन अंडरस्टैंडिंग है, प्री फ्यूडल भी अंडरस्टैंडिंग उस इलाके में यमन में है, उस हिसाब से फिलिस्तीनियन सबसे प्रोग्रेसिव लोग हैं मिडिल ईस्ट में। मैं वहाँ उसी धर्म का नाम नहीं कर रहा, वो फिलिस्तीनियन लोग। अब वहाँ क्या हुआ कि जो इसराइल में भी ये लोग जो है कट्टरपंथी, नेतान्याहू भी बहुत कट्टरपंथी आदमी है, पूरे इसराइलियन नहीं है। और उसी तरह से हमास तो एक बहुत ही कट्टरपंथी आदमी है, हमास इलेक्शन जीत गया, पीएलओ हार गया, ऐसा अराफात जब हारा क्योंकि ग्लोबल वर्ल्ड ने नहीं काम किया। अभी 6 मंथ से क्या हुआ, 6 मंथ से कतर जो है पैसा नहीं दे पा रहा था, कतर उनको सीधा सपोर्ट करता है, वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे थे और इलेक्शन इतने दिन से हो नहीं रहा था। अब क्या हुआ कि पता नहीं, मतलब मोसाद इतना पावरफुल है, FBI भी लगा हुआ है, सब कुछ है, 5000 रॉकेट इसराइल में, इसराइल में जो मसाकर्स की हमास ने, हम उसको कंडेम करते हैं। इसके बाद जो है अब रिटेलिएशन क्या हो रहा है कि ये लोग मारे, यहाँ भी जनता मारी जा रही है, हाँ ये तो जो है। तो अब ये सवाल है कि अब जो गाजा उनको मिला था, गाजा छोड़ा था यूएन रेजोल्यूशन के बाद, गाजा छोड़ करके उसमें हमास को दिया था। अब हमास जो है इलेक्शन इतने दिन से नहीं करवाया, जो इलेक्शन हो जाना चाहिए था आज से 2 साल पहले, तो इलेक्शन न करवा के वही फिर आ गया इलेक्शन कि अगर आपको नहीं करना है तो मार काट कर लो, चीजें कर लो और फिर निगोशिएट कर लो। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि ये एक तरह से बहुत बड़ा क्राइसिस है जो है, और पश्चिम एशिया जो है एक खतरे की तरफ जा रहा है। और इसराइल को भी रिस्पेक्ट करना चाहिए कि सिटीजन न मारे जाए, उनको भी रिस्पेक्ट करना कि न मारे जाए। हमास जो है अगर कोई भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है तो यूएन सिस्टम में जाना चाहिए और उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए जो है। और हमें लगता है कि इसराइलियन लोगों को समझना चाहिए कि जो फिलिस्तीन के लोग हैं उनको भी जो है किस तरह से उनको क्राइसिस क्रिएट ना हो, उनकी डेथ ना हो, उनको अनाज मिले, उनको काम मिले, उन सब चीजों को थोड़ा सा तो वो लोग भी। और मैं आपको अच्छी बात बताऊं, वहाँ कुछ अच्छे काम हो रहे हैं। दानी जिसको एक अवार्ड मिला था, रिलीजियस है, जूस है, एक ग्लोबल प्लूरिज्म अवार्ड उनको मेन मिला था। वो एक अच्छा काम करते थे। उनके स्कूल में, मतलब जहाँ भी जितने भी स्कूल थे, उन स्कूलों में मुस्लिम बच्चे जो थे वो यहूदी धर्म को पढ़ते थे, यहूदी लोग इस्लाम को पढ़ते थे, और वो हिब्रू पढ़ते थे और ये जो है मतलब अरबी पढ़ते थे। तो ये जो प्रयास है ये होना पड़ेगा, और 2 नेशंस तो रहेगा जो है। और हम एज ए भारतीय लोग 2 नेशंस के साथ है जो है, दोनों हमारे दोस्त हैं, जो भी हुआ है अनफॉर्चुनेट है। और हम किसी भी किस्म की चाहे स्टेट स्पॉन्सर्ड टॉर्चर हो या जो है टेररिज्म हो, दोनों को हम लोग विरोध करते हैं, क्योंकि हम खुद जो है बहुत ऐसे भारत ने बहुत फेस किया है, अगल बगल से हमारे साथ जो कुछ हुआ है बहुत ही अच्छा नहीं। So sir, what do you think that this attack on Israel is an intelligence failure? No, you looked at intelligence. They had very much expert on the AI, artificial intelligence, and what the Mossad did, they did not use any means mobiles and other things and other media. They used the human to human relationship, and they developed in the 1 years maybe.
and through they will do that. And if you want to create any terrorism, put the bombs and some anarchist thing, one incident or two incident, that is very easy. So it is not the failure, because no government is going to control terrorism only through the intelligence things and by the war. We need the win, the hearts of the that is most important thing. And there is a failure of the Netanyahu. There is a many wonderful Israelis. They have wonderful relationship with the Palestinian people, because they did not allow, because you look the electricity, 4-hour electricity provided by Israel, they stop now. Only 4 hours in 24. And also the waters and other things. So there is a crisis. And the Hamas here, Hamas already came by election, but there is a big protest against Hamas inside, inside Gaza. So for that reason, Hamas used this tactics to create the war-like situation. Then there is no election, and then Hamas is going to control through the army. So that is the whole situation. So it is very complicated, complex issue, but not only the failure of the intelligence of the Mossad. So my other question is that, like this conflict can make Third World War. No. Russia is very powerful. But Russia-Ukraine war is so confined only into the Ukraine. There's some missile came on the Russia, but only on the Ukraine. And people are also involved into that. I wrote to Putin, and then many people also talk with them. This is the already existing conflicts, but this conflict never resolved by the global power and the United Nations. And for that region, what happened? Situation came in with the violence, with the war, and war is never answer. America, US never won the war in the Vietnam, also in the Afghanistan. They ran away. Also for all these countries, same thing is going to happen in Ukraine. Russia need to understand. But Russia is also doing to talk with the people, giving the good opportunity to them. So few parts of Ukraine join the greater Russia. So this is the very new tactics. So, but it is not going to convert into the Third World War, because it is a real conflict. We need to resolve that. Many things are happening, and it is a reality of it. So, sir, what should be, according to you, what should be India's stand on this scenario? Our government did fantastic, especially on the Russia and Ukraine one. Talk with both of them. We want to diplomatic talks with both of them. So for people like me and also the opposition party, when they went to outside, they support the stand-up Indian government. So for the Russian and Ukraine war, we support the government. This is the new war and situation, because our government are against the terrorism, and for that reasons they are against the Hamas massacre. But I am a human rights activist, so I understand if this is an act, but there is also reason behind that. So we need more deeper diagnosis. So maybe government of India is doing, and we are helping them. So in the futures, we are coming with the full strategies and our statements with both Palestine. But India always support two nations. So this is our way. But India never going to support any terrorist attack. Yeah, killing by any state to any citizen in the world. So my another question is that, like Operation Al-Aqsa Storm. So what does it mean? Operation Al-Aqsa Storm that Hamas do that Israel. No, that is you look the retaliation, because you look the UN told Israel also did the occupation, okay? And there is a big things. This is the colonial attitudes. So and Qatar did not support 6 months direct finance support, and for that reason, what happened? There is a big unrest. So Hamas actually want to control their position because PLO is there. PLO is like a Gandhian way of fighting. And in this way, because if the PLO is coming again,
and then Hamas is going to eliminate totally. So in that way, Hamas organized themselves in 6-7 months, in the 1 year almost, and then they attack on the Israel. And in this way, also we understand they receive the rockets and other thing. So we need to discuss about also the war industry, also about the defense industry. Otherwise, it is big problem. We have so much control on the guns, but the US is fighting inside to make a control on the selling of the guns. And you look, many kids came and kill in the schools and the community due to the frustrations, because you have so open gun in the market. So that is also important. And also understand one American thinker told, democracy prefers market. Market doesn't prefer democracy. So it is important, we need to be continuous fighting for the democracy and the non-violence and the diplomacy. So, sir, if you were at the place of Israel's Prime Minister, what you will take the next step? He's a right-wing guy, so he loves war. So he is going to make a revenge. Hamas understand. So it is the two win-win situation for the Hamas and Netanyahu. Netanyahu is doing the war here, and Israeli people never going to think about their basic necessity. And here Hamas is telling, we are fighting for you. So I don't know what is the deal. We need to understand more deeply what is the deal. But the Netanyahu is like that. And if he is not going to succeed in 6 months, maybe next election he is going to face very badly. सर एक और चीज़ है, डोंट यू थिंक एकदम बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस है कि जब जो मिडिल ईस्ट में इसराइल और सऊदी अरेबिया के बीच में हिस्टोरिक कॉन्ट्रैक्ट होने जा रहा था पीस का, और इससे पूरे मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स चेंज हो गई होती, उसके कुछ दिन पहले ही हमास ने अटैक कर दिया है। नहीं, क्योंकि देखिए हमास भी एक चीज समझिएगा, इसराइल टू नेशन, अभी हमने कहीं लिखा फेसबुक पे, तो कुछ लोग जो है कम्युनिस्ट टाइप के लोग, रेडिकल कम्युनिस्ट, मुझे कह रहे आपका नाम लेनिन है, मेरे पिताजी कम्युनिस्ट है, मैं नहीं, मैं तो बिल्कुल में पढ़ा, हाँ जी, दूसरे तरह का आदमी, हाँ जी, तो अब वो बोल रहे हैं कि क्योंकि वो लोग क्यों हमला करना चाहते हैं, वो चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं, क्योंकि हमास अपना बेस खो रहा था, और अगर पीएलओ को अगर आ गया बेस मिल गया और तो वो दिक्कत होगा, और टू नेशन वो मानते नहीं है, मतलब तो पूरा जो रेडिकल फिलिस्तीनियन भी है वो टू नेशंस नहीं मानते, और रेडिकल इजरायलियन भी टू नेशन नहीं मानते, वो चाहते हैं कि हम पूरा का पूरा जो है फिलिस्तीन खा जाए, काफी तो खा गए, पर यूएन ने बोला कि आप कि मतलब एकमात्र रेजोल्यूशन पास है दुनिया में इजराइल के खिलाफ कि आपने ऑक्युपेशन कर रखा है, आप रेसिस्ट है, परंतु तो उसका मतलब ये नहीं है कि हम यहूदी धर्म को गाली दें, इजराइल देसी नहीं है, ये हम ना इसकी खिलाफत करें, ये एक खतरनाक बात है, और हमास वो एस्टैब्लिश करना चाहता है, क्योंकि हमें हमास रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है सर, दुनिया भर की बातें तो हो गई, मैं हमारे भारत के ऊपर आना चाहता हूँ। सर, आप एज एन एक्टिविस्ट, आप भारत के लिए क्या क्या कर रहे हैं? हम लोग देखिए, भारत के लिए जो सबसे बड़ा काम हम लोग कर रहे थे कि जो एक कास्ट कॉन्फ्लिक्ट था, आज से जो मेरे बाबा फ्रीडम फाइटर थे, हाँ जी, तो उन्होंने हमसे कहा कि हम लोगों को रिकॉन्सिलेशन मूवमेंट करना चाहिए। रिकॉन्सिलेशन मूवमेंट्स जो है उनके बीच में, तो हम लोग मुसहर कम्युनिटी के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, और उसी कम्युनिटी का एक्टिविस्ट नहीं रखते हैं, आप भी इसको समझिएगा, हम दूसरे कास्ट का रखते हैं, जिससे कि एक मेमोरीज इंस्टीट्यूशनल क्रिएट्स हो कि एक नॉन मुसहर आके हमारे बीच में काम किया, हमारी कास्ट का आदमी नहीं आके दूसरे ने काम किया। दूसरा है कि हम लोग जो ये पैट्रियार्की का पूरा मामला है, औरतों का 33% जो अभी रिजर्वेशन हुआ है, आपके इस यहाँ से सनबीम से जो पहला था, शबाना पढ़ के यहाँ से निकली है, वो हमारे क्या प्रोग्राम डायरेक्टर है, तो वो जो है उन्होंने 33% का जो है रिजर्वेशन का औरतों का आंदोलन शुरू किया। लोगों ने कहा मोदी जी नहीं कर सकते, हमें लगा नहीं मोदी जी कर सकते, मोदी जी को हम लोगों ने जो है उन्होंने change.org में किया, हम लोगों ने उनको समझाया कि मोदी जी को भी भाई मां अन्नपूर्णा को और माँ पार्वती को हम इतनी इज्जत करते हैं, देवियों को हम इज्जत करने वाली इस परंपरा है सनातन की, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा, जो हम तो मदरलैंड बोलते हैं, फादरलैंड वाला, और उन्होंने कर दिया, और सब आश्चर्यचकित, उसमें कुछ लैकुनास है, चीजें हैं, वो डायनेमिक्स है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स इशू है कास्ट का और अदर थिंग्स, उसमें अलग बात है, वो हुआ। दूसरी चीजें हैं कि हम लोग जैसे मणिपुर में है,
हम इससे पहले मणिपुर में बीजेपी केवल मजबूत इसलिए हुई थी कि मणिपुर में हम लोगों ने जाके रिकॉन्सिलेशन मूवमेंट किया। अभी भी मणिपुर में हम काम कर रहे हैं, कश्मीर में हम लोग जो लोग हैं उनकी मदद कर रहे हैं। हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज को पे भी प्रेशर किया कि आप सही काम नहीं कर रहे हैं, आप तोड़ने का अगर वो काम कर रहा है कोई, तो आप जोड़ने का काम कीजिए। ये हम लोगों का बहुत पुराना नारा था, 2007 से हम लोग समझा रहे थे, नहीं समझ रहे थे। अब वो जोड़ने का काम कर रहे हैं, सब जगह जा रहे हैं। भाई हम जो अमीर लोग हैं, मतलब इलीट फैमिली में पैदा हुए हैं, हमारा काम है कि हम लोगों के बीच में जाए, लोगों के साथ काम करें। इस इलाके में जब हम पुलिस टॉर्चर के खिलाफ लड़ रहे थे तो हम अपने माफियाओं के खिलाफ लड़ रहे थे, अपने लोगों के खिलाफ लड़ रहे थे। हमारे घर के लोग थे, उनसे हमको लड़ाई करनी पड़ रही थी जो है। बल्कि एक दो मीटिंग हुई घर के अंदर, तो हमारी एक दादी थी, तो उन्होंने पूछा कि ये तुम्हारा काम है? हमने कहा हमारा बिजनेस है, ये मेरा पेशा है ये। तो कहा इसमें बंदूक नहीं? हमने कहा नहीं, हम तो पेन से लड़ते हैं, जबान से बोलते हैं। तो बल्कि एक आदमी थे जो है, उनका नाम नहीं लेना या उचित नहीं है, उनको बहुत तेज डांटा, अरे जब पेन से लड़ रहा है तो तुम काहे को जो है मतलब जो बंदूक से लड़ रहा है। और धीरे धीरे हम लोगों ने लोगों की मदद की, और आज ये स्थिति है कि उन्हीं के बड़े भाई, अभी हम 300 बच्चियों को हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप दे रहे हैं। वो अपनी एनजीओज और फिलोथेरेपी बनाना चाह रहे हैं, हम लोग उनको भी मदद कर रहे हैं। हर आदमी में रिफॉर्म आ सकता है जो है। ये एक बड़ा जो हम लोग काम कर रहे हैं, और ह्यूमन राइट्स को भारतीय परिपेक्ष से हम लोग परिभाषित करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। वसुधैव कुटुंबकम की बात आज से हम लोग 21 साल पहले की, किसी ने नहीं माना। हम शास्त्रार्थ की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि कबीर के साथ और रैदास जी के साथ यहाँ कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुआ जो है, यहाँ कोई मॉब लिंचिंग नहीं हुआ। जबकि कास्ट सिस्टम तो इससे भी ज्यादा एग्रेसिव रहा होगा आज से 600 साल पहले। वो कह रहे हैं एक चामे खुदा को बाबन को सुधा, हिंदू कट्टरपंथ के खिलाफ भी बोल रहे हैं, मुस्लिम कट्टरपंथ के खिलाफ भी लोग, मतलब सिकंदर लोदी को हरा दे रहे हैं, यहाँ से उसको पलायन करना पड़ रहा है। तो ये जो पूरी की पूरी चीजें हैं, इसको समझने की बहुत जरूरत है। हम लोगों को, जैसे हमने गुड़ी पाड़वा यहाँ किया कि नहीं मराठा की संस्कृति में यहाँ आए, दूसरों की संस्कृति में आए। बनारस को हम लोग डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं कि महादेव का शहर है। कैसे ये जो है दक्ष प्रजापति की जो समझदारी है उससे अलग जो है, और क्यों माँ पार्वती को मतलब गौरी को सती होना पड़ा था, और ये क्या फॉर्म है। तो हम लोग सवाल है कि जो इंडिजिनस विजडम है, साइंटिफिक टेम्पर है, और आज तक हम लोग करीब 1.5 लाख बच्चों को जो है पढ़ा चुके हैं। मदरसे में हमने काम किया है, मदरसों के अंदर हम लोगों ने दीनी तालीम जो उनकी होती है उसमें नहीं घुसे। दुनियावी तालीम में हम लोगों ने पहली बार, हम जब IT एनेबल्ड एजुकेशन ले गए तो वहां पता चला कि छड़ी मारते थे। आपकी तरह तो पढ़ाते नहीं है, मतलब आप तो मॉडर्न एजुकेशन पढ़ाते हैं, तो छड़ी मारने वाले उसको भी कंप्यूटर सीखना पड़ा। तो बच्चे और टीचर एक ही पोजीशन पे आ गए और वो छड़ी छूट गई। तो IT एनेबल्ड एजुकेशन क्रिएट्स अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो हम लोग का ये कुछ काम, पुलिस टॉर्चर, पहले एनकाउंटर्स होते थे वो रुके। अभी भी जब कुछ एनकाउंटर्स हुए, योगी जी आए तो हमने उनको भी विरोध किया। कुछ जब उन्होंने बुलडोजर गलत तरीके से चलाया तो उस पर भी विरोध किया, और दे आर लिसनिंग अस। तो हमारा कह रहे हैं कि 5000 साल पुराना सोसाइटी है, तो आप झाड़ू कम लगा है, तो अगर घर में झाड़ू नहीं लगा है तो हम अच्छी चीजें नहीं उठा के फेंकते, हम कूड़े को निकालते हैं। तो कूड़ा धीरे धीरे निकल रहा है, और हमें लग रहा है कि इंडिया इज रियली चेंजिंग अराउंड। मतलब 70 साल में भी चेंज हुआ, लेकिन इधर भी बहुत तेजी से चेंज हो रहा है, मतलब, और वो बहुत जरूरी है। सर लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आपने सनातन धर्म को मेंशन किया। कुछ लोग हैं जो सनातन धर्म की अब निंदा कर रहे हैं, कह रहे हैं सनातन धर्म जो है इसको हटा देना चाहिए, आपका क्या है? देखिए, सनातन शब्द जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि बुद्ध ने बौद्ध साहित्य में आया विशेषण के रूप में, क्योंकि कोई धर्म का नाम नहीं था। हिंदू तो कोई धर्म ही नहीं है, तो बाहर से लोग आए, हम लोगों को सिंधु के इधर थे, हिंदू बोले, जहाँ से आपके परिवार के लोग अनफॉर्चुनेटली आना पड़ा और आप आके इतना एस्टेब्लिश हुए। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जो है सनातन, उस वेद और उपनिषद की उस धारा को कहा गया, उसमें 2 धाराएं थी, दोनों ब्राह्मणों ने शुरू की थी। एक धारा थी जिसमें पिरामिड्स की बात थी, मतलब कुछ लोग ऊपर श्रेष्ठ थे और कुछ लोग वो थे। उसी की खिलाफत वेद में लोकायत ने किया, वो भी ब्राह्मण था, तो उसको कहा गया श्रवण संस्कृति। दूसरा पुरोहितवाद था, मैं उसका ब्राह्मणवाद लोग कहते हैं, मैं उस नाम से बहुत खुश नहीं हूँ। पुरोहितवाद हर धर्म में है, तो ये पुरोहितवाद था, और ये जो है श्रवण संस्कृति, जिसमें पूरा सूफी मूवमेंट, सिख मूवमेंट, जैन जो है, ये सब जो है श्रवण संस्कृति के हिस्से थे सनातन के।
तो अब मनुस्मृति 2000 साल बाद आई है, तो अगर स्टालिन के बेटे को विरोध करना है तो वो मनुस्मृति करे, लेनिन रघुवंशी भी कर रहे हैं। लेनिन रघुवंशी इज ए प्राउड सनातन, वहाँ शास्त्रार्थ है, वसुधैव कुटुंबकम है, जो है हम किसी औरत, हो सकता है मैं 15% आज भी पैट्रियार्कल हूँ, मैं पूरा टोटली डिकास्ट हो गया हूँ कि अभी भी पैट्रियार्कल हूँ, कि मैं कोई महिला, अगर कोई पुरुष हमारे ऊपर अटैक कर दे तो मैं शायद उसको विरोध बहुत तेजी से कर सकता हूँ, कि कोई महिला वो करेगी तो मुझे लगेगा मैं काली पूजक होने के नाते नहीं, हो सकता है पता नहीं मेरा प्रारब्ध का हो या माँ कुछ और संकेत कर रही हो। तो ये जो पूरा इंडिजिनस विजडम है फेमिनिज्म का, आप देखिए ना माँ काली क्या कह रही है, जितने भी सर है पुरुषों के हैं, और जो है महादेव का ईगो, मतलब पुरुषों का ईगो, ये जब कंट्रोल होगा तो वार खत्म होगा। और अब यूएन ये कह रहा है कि जब तक पुरुषों का हेजेमोनिक मस्कुलिनिटी कंट्रोल नहीं होगी तब तक वॉर खत्म नहीं कर सकते, कॉन्फ्लिक्ट खत्म नहीं कर सकते, वायलेंस खत्म नहीं कर सकते। और बताइए माँ काली की मूर्ति और फिलॉसफी पहले से कहती थी। तो ये जो पूरी चीजें हैं, मतलब केवल एक उसका बहुत ही सरलीकरण कर देना या उसको बहुत कॉम्प्लिकेट कर देना, ये भी बहुत खतरनाक है। हमारा घर था, उसमें कुछ कमियां आई थी, अगर हम झाड़ू रोज नहीं लगाएंगे तो दिक्कत होगी। अब आप कूड़े को सनातन कहिए जो हमारे इकट्ठा हुआ था, और जो असली जो हमारा वो है, इसका मतलब थोड़ी कि गेहूं के खेत में हम गए जो है घास बिनने तो हम गेहूं ही उठा के फेंक देंगे, ये गलत बात है। इसलिए सनातन जो है बौद्धों ने दिया था, सनातन का अर्थ है, अगर उसको अरबी में करेंगे तो इस्लाम हो जाएगा, जो है जो ईश्वर ने दिया है। अब उसमें और सनातन में तो नास्तिकों को भी हक है, चारवाक को भी हक है, न्याय, सांख्य, वैशेषिक, बौद्ध, बुद्ध जो है कभी ईश्वर को उस तरह से नहीं मानते थे, मानवता को मानते थे। अब मुझे लगता है कि शास्त्रार्थ और वसुधैव कुटुंबकम दिक्कत नहीं है, मनुस्मृति जो बाद में आई है उसकी खिलाफत है, वो सनातन का हिस्सा नहीं है। और उसके बाद जो हिटलर और मुसोलिनी की समझदारी देश में आई, वो सनातन की समझदारी नहीं, वो यूरोप का कूड़ा है, हमारा नहीं। ये स्थिति, इसलिए सनातन का विरोध जो है बहुत ही अवैज्ञानिक तरीके से किया जा रहा है। थैंक यू सो मच सर। आप लोग कुछ सर से पूछना चाहेंगे बिफोर वी क्लोज? Sir, I want to know that according to you, what was the main reason, or the reason is right or wrong, that this all things were happening? जो वॉर चल रही है हर जगह पे, बेसिकली पूछना चाह रही हैं कि रशिया यूक्रेन में वॉर चल रही है, इंडिया चाइना में टेंशन है, कनाडा इंडिया में टेंशन है, इधर उधर हर जगह किसी ना किसी को टेंशन ही टेंशन है, ठीक है। यूएस और क्यूबा में तो हमेशा से चलती आ रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है आजकल? कैसा क्या सॉल्व करें इसमें? एक्चुअली महात्मा गांधी जी से whole world, two things are very important. One is the one teaching in Mahatma Gandhi, whole world is enough for everyone's need, not for one person's greed. One sentence. Second is the Buddha says 500 years before Jesus Christ, if you want to eliminate hatred, only through the love, not by hatred. It is the eternal rule. So then you understand these two things. World need to understand from the indigenous wisdom of India. We fought against British colonial, but we never hate them. We work with them, we collaborate with them. And the biggest problem, because the Europeans want to cheap product and they supported China, not the India. And there is a Communist Party of the China. There is a Han dynasty in China, so they are facing. And also there is a Cold War that time with USSR and Russia, USA. And for that reason, this conflicts. So that is the natural conflicts. And sometimes something is going to very inhuman. It is a crisis of the humanity, but it is happening. So, but we are hopeful. India is going to play very differently, and India is going to already playing it very differently. And in this way, maybe within the 10 years, it is different world. And India is, I'm not telling superpower, is one important players. To do many things all over the world. ठीक है, थैंक यू सो मच सर, आपने अपना टाइम दिया हम लोग को, आपने अपनी विजडम हम लोग से शेयर की। थैंक यू सो मच अगेन सर, थैंक यू सर।